एक डेंटल चेयर थी. In 1 year it must be 35 to 40 lakhs. Sudden fall in your life. A lady is more talented, more stronger, and more powerful than men. I did a course in Ahmedabad, from Vadodara to Ahmedabad for that course. Along with that, she was pregnant. In July, she delivered a baby girl. And I started working just 1 week after the having the baby. Very Okay, nice. both were doing 35-40 lakh practice. The big loss in your life. आपने एक डिसीजन लिया कि मेरे को ये चलाना है, इंडिपेंडेंट बनना है. In a second year, you could match the financial target. In a third year, you could double the size of the existing Existing facility. patients. अभी डबल द साइज किया है ना, तो वो Facility किया, अभी चलाना भी turnover है, ना. टर्नओवर डबल नहीं हुआ है. टर्नओवर डबल नहीं हुआ है. हाँ, वो कैसे उसके हुआ? लिए ज्यादा मेहनत सी. आई टोल्ड यू ना. अच्छा, वो हो गया? अभी हुआ है ना, लेकिन अच्छा. पहले वो टाइम जब ये स्टार्ट किया था, यू ऑलवेज हैव डाउट्स. जब मीन्स रिसेप्शन एरिया जो है दैट इज ऑन रेंट. सो ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि ये 3 का क्या ज़रूरत है, लेट मी जस्ट गिव इट अवे. ये 3 डेंटल चेयर्स के साथ मैंने स्टार्ट किया. मैंने सोचा ये 3 डेंटल चेयर की क्या ज़रूरत है, ये काफ़ी बड़ा है. और उस टाइम इफ आई टॉक इन अबाउट 2020, तो उस टाइम पे इफ वन पेशेंट आई वॉज वर्किंग विद दैट वन पेशेंट, और एक पेशेंट रिसेप्शन के एरिया में होता था. सो दैट इज़ हाउ आई यूज टू प्रैक्टिस. तो मैंने सोचा उसके लिए 1100 की क्या ज़रूरत है. सो इफ आई हैड टू ग्रो देन आई नीडेड मोर पेशेंट्स. एग्जिस्टिंग पेशेंट से काम नहीं होगा. तो आई स्टार्टेड डूइंग डिजिटल मार्केटिंग. दैट इज हाउ आई गॉट इनटू फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल. पहले हम लोग गूगल पे रिव्यूज भी नहीं लेते थे. नाउ वी हैव स्टार्टेड टेलिंग एवरी पेशेंट्स यू प्लीज रिव्यू अस ऑन गूगल, एंड दे आर वेरी काइंड इनफ कि वो लोग हमको दे देते हैं रिव्यूज, एंड दे राइट वेरी गुड नाइस थिंग्स अबाउट अस. एंड देन येस, डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टुडेज वर्ल्ड. कि अगर आप सब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर इतने सारे, if so many people are using social media, then In 2020, you started using the social media. yes. Before that, you were not. No, I into was this. doing it, but it was like very sporadic. 1 या 2 पोस्ट होती थी. I was not doing on consistent regular basis. In 2021, like 2019, you were able to achieve the 20 lakh of Yes. Karalibag, 18 to 20 lakh. हाँ. In 2021, you could match the level of 35 lakh. And What now about 2022? 2022, I would say that it was not a very breakthrough year. See, when you are starting new things, okay, then I think you it was immediately 2021. 2021, yes, things, the results you don't start seeing immediately. देखो, when you are setting a target कि मेरे को मेरा practice डबल करना है, तो and then you are thinking कि let me start doing marketing, let me start doing better sales, then you won't see that results immediately. Okay, and during that time you have to be very much patient. कि ऐसे नहीं कि यू गिव अप कि ये मार्केटिंग नहीं काम कर रहा है, इससे कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं. सी, यू हैव टू कीप पुटिंग दोज कंसिस्टेंट एफर्ट्स, एंड मैनी टाइम्स थिंग्स वोंट गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान. Okay, things do fail. You have those bad moments, wrong moments, but you have to keep going. See. Yes, we need to learn. Yes. And what was You the don't have to give up. Yes. with this effort, the expansion of existing facility, and with putting new marketing you strategy. don't start seeing those results immediately. In 2021, it was only 50 lakhs, like so 35-40 lakhs and 50 lakhs. So it was not a huge growth. That's So what for I you it is not a huge growth, Okay. but for a people, if you see, it is a almost 50% growth in a first Okay, year. okay, yes. So that was the achievement. That's the absolutely perfect thing, that we should not get satisfied with our own results Yes. और own growth. 2-3 चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी निकल के आई जो एज अ मेडिकल एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आप प्रैक्टिस करते हो, आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है, ग्रोथ मिल रहा है, तो एक आपका एग्जिस्टिंग सेटअप, आप जो नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हो उस लेवल का बना दीजिए. तो वो हुआ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट. दूसरा, आपका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो उसको आप अपग्रेड कीजिए, जिससे आपके पास नए कस्टमर बेस आए और जिससे आपका जो टारगेट है वो अचीव कर पाए. देखो, ये जो उन्होंने ऐसा नहीं है कि ये दोनों चीज़ें की,
तीसरी चीज, उनके पास जो इन हाउस फैसिलिटी थी उसको भी एक लेवल अपग्रेड किया। जैसे नई फैसिलिटी बनाई, उसमें जो भी नए डेंटल चेयर्स और वो इंस्ट्रूमेंट्स लाए, वो उस टाइम के लिए या अभी के लिए एकदम लेटेस्ट लेके आए। सो दिस थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो 2021 वाज लाइक आपने 50% अचीव कर लिया। 2022 में क्या हुआ वो बताइए। Yes, 2022 most of the corona was like by March April I think corona का इफेक्ट चला गया था। So that is when customers started coming and by that time see अभी मैंने जो मार्केटिंग और जो सेल्स स्ट्रेटेजी, इवन नॉट जस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मैंने अपना सेल्स स्ट्रेटेजी भी चेंज किया कि आई स्टार्टेड शोइंग देम। मैंने पिक्चर्स देना स्टार्ट किया क्लिनिकल एंड देन आई स्टार्टेड शोइंग द रिजल्ट्स कि ऐसे होता है। सो इफ़ अ पेशेंट इज, मेरे दांत नहीं है, सो आई वॉज एबल टू शो देम कि इस तरह से हम इम्प्लांट्स रखते हैं, इसके ऊपर दांत आते हैं एंड दैट इज़ हाउ पीपल आर एबल टू च्यू दैम। So it was in 2022 that the strategies, that the work which I had done over a period of 1.5 years that started showing into results. Okay, and by the time of 2023 I was 2022 में आपने कितना अचीव किया? आई एम मोर कमर्शियल पर्सन। It was around 70 to 80 lakhs. Yes. So you doubled the yes, I was target able of to, your husband. Yes, मेरा husband का practice कुछ 35-40 lakhs का होता था and I was able to do 70 to 80 lakhs. So obviously I'll clap for myself. Yes. Very nice. So यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जो लोग अपने आप को बेचारा समझते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि अपने आप को ऐसा समझते हैं कि दुनिया का सारा प्रॉब्लम मेरे को ही दिया हुआ है। तो ये एपिसोड है ना, उन सब के लिए है, ध्यान से समझना। 2018 में पति का जाना, एक छोटी बच्ची साथ में और एक पेट में बच्ची, उसके साथ दो क्लिनिक को संभालना, अपनी टेक्निकल स्किल को अपग्रेड करना, मैनेजरियल स्किल को अपग्रेड करना, बिजनेस को 2022 तक डबल पहुंचा देना। 70 lakh practice is huge. Yes, for a dentist it's huge, and now Dr. Purani's Dental Solutions is one of the leading dental practitioners in the market. Okay, we are having a name कि अगर practice हो तो we want to practice like her. Very it's nice. Like, Very yeah, nice. I'm able to inspire a lot many females who are like thinking कि हम कर सकते हैं। तो I'm like if I can do it, you can do it too. You just have to put in efforts. सबके पास वो ताकत तो है, वो है ही, लेकिन मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करना and पड़ता है। मेहनत in the right directions with the consistency is the key. Okay, you have to be prepared for failures, and not always things are not going to go according to your plans, and you have to be prepared for that failures as well. कि तुम्हारा you have to have that nerves of the steel, the mindset has to be of the iron, and yeah, and then you are able to do this. We need to keep on doing working. And it's not just about males or females, and anyone can do it. अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज पूछना था मैडम, जैसे इन अ स्पेसिफिकली डॉक्टर फील्ड, जनरली डॉक्टर देखे ना तो थोड़े बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ promoting themselves. Agreed. In marketing, in sales, they are not so expert. Yes. They are expert in their particular field. Yes. So as a medical entrepreneur, Yes. अभी आप इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हो, तो आई वुड से यू आर अ मेडिकल एंटरप्रेन्योर। सो आपके केस में कैसा था, और अगर आप भी इंट्रोवर्ट थे तो हाउ कुड यू डेवलप दो स्किल्स? Yes, I was a very introverted person. It was not like कि I was always, मैं अगर माइक के सामने जाती तो मैं डर जाती थी। Okay, it was not like I was always so confident, so fluent. I think I'm doing good right now on mic. But I was not always this good. After a while, I started promoting myself aggressively. Okay, see this, I have developed a very good setup. I am having very good skills, and trust me, I practice in a very down to earth manner. It's not that I am having those airs that अभी मैं वडोदरा की बेस्ट प्रैक्टिशनर हूँ in terms of my skills and all. No, I humbly accept कि there are better practitioners available in the market. Okay, कि there are people who are doing more better root canals, more better implants than what I am doing. But what here at Dr. Purani's I am able to do is give the patient specific solution for their dental problems. कि अगर पेशेंट को इम्प्लांट नहीं करवाना है, सपोज ओके, इफ पेशेंट डज नॉट वांट टू स्पेंड 3 to 4 lakhs फॉर अ फुल माउथ इम्प्लांट, देन आई विल गिव हिम और हर अ वेरी गुड डेंचर। एंड ट्रस्ट मी, इफ मैं जितना इम्प्लांट्स
करने में एनर्जी देती हूँ उतना ही एनर्जीज द पॉजिटिव एनर्जीज आई गिव while doing that dentures as well. तो मैं चौकठा is like even 12-15,000 you can make a very good denture and even with that denture patient is able to chew nicely. That is what I do. So I give treatments according to the specific needs of the patient, considering like what they require. ऐसे नहीं कि मेरे को implant sell करना है तो तुम implant ही करवाओ. No. So right selling, you are putting the Yes, that is focus. the sales strategy that I had developed. कि customer for me is the main person. उसको जो चाहिए वो दे दो. And plus I also respect my other professionals कि मार्केट में जो भी काम कर रहे हैं तो I do respect them कि suppose if a dissatisfied customer is coming to my clinic, so I don't badmouth that dentist कि ऐसे कि नहीं इनका काम खराब है और मेरा काम अच्छा है. Even that negative practice also I don't do. Staff management is also important कि you need to know how to make people work for you, which is not a very very easy skill to master. कि कोई तुम्हारे लिए काम कर रहा है, even though you are paying them money, still they need to work at your level. True. कि तुम्हारे लेवल पे काम कर सके तो तुम्हारे जो गोल्स है, तुम्हारे जो नीड्स है उनको ध्यान में रख के काम कर सके. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू फोकस ऑन दैट एज वेल. if you want to be the medical entrepreneur, तो स्टाफ मैनेजमेंट, बिकॉज लाइक सब काम आप नहीं करते. हाँ. आपके साथ आपके सपोर्टिंग स्टाफ्स भी होते ही हैं. तो उनको भी वो लेवल पे डेवलप करना, मैनेज करना एंड उनको वो they also have to feel that we are also the star of this clinic. Absolutely. Okay. And वो क्या होता है कि मेडिकल फील्ड में एजुकेशन में नहीं आता. Yes. So that those skills we need to develop. It's not that I am the only person working in my clinic, and the other the doctors who are working, my staff members who are working, they are also very famous practitioners in their own way. Very nice. If you are a doctor who is practicing, then don't just focus on developing your skills, your dental skills, your medical skills कि आप अच्छा ऑपरेशन कर रहे हो. Then it's yeah, you have to do that. You have to be good at it. कि तुम्हारा skills तो अच्छा होना ही चाहिए. But the thing is कि if you depend just on the word of mouth, कि तुमने अच्छा एक ऑपरेशन किया and that person he'll go outside and tell 10 other people, then don't wait for that. If you are doing a good operation, if you are doing a good dental surgery, then you take some pictures. आप पिक्चर्स लो कि आपने गुड डेंटल सर्जरी या गुड मेडिकल सर्जरी कुछ किया आपने, देन यू प्रमोट इट ऑन सोशल मीडिया. इफ यू विल वेट फॉर दैट पर्सन टू गो आउट एंड स्प्रेड विथ, इट विल रीच जस्ट 10 people. इफ यू आर putting it on your networking site, then it will reach like 8,000 to 10,000 people. I think that's the reach of social media. So develop those marketing skills and then develop the sales skill, plus hire people who can work for you. That is how you can do it, rather than doing everything on your own and developing just your medical or dental skills. Very true. Because like अगर आप प्रमोट करते हो अपने वर्क को ऑन अ सोशल मीडिया और एनी प्लेटफॉर्म, वो इनडायरेक्टली लोगों को माइंड में रजिस्टर्ड होता है कि ये लेवल का प्रैक्टिस यहाँ हो रहा है. तो ये चीज आप भी कर सकते हो. Yes, you can take photographs, you can take interviews of your patients. Very and nice. then put it on social media. Then that will have a quicker, faster reach. Yes. True. Because आज सब लोग है ना गूगल करते हैं. Yes. हो सकता है कि Yeah, किसी put it on Google as well. Yes, not just आज Facebook and Instagram. आज हो सकता है कि आज मेरे को मैं कोई सिटी में गया हूँ, बहुत सारे, बड़ौदा इज अ प्लेस देयर लाइक मेजोरिटी पीपल आर माइग्रेटेड. बहुत सारी कंपनीज है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं. तो बहुत सारे लोग जो आए यहाँ पे उनको पता नहीं है कि कौन सा डेंटल सॉल्यूशन अच्छा है, कौन सा आई स्पेशलिस्ट अच्छा है, तो वो गूगल करते हैं. एंड गूगल पे जिनके रिव्यूज अच्छे होते हैं उनके पास जाते हैं. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑन अपग्रेडिंग एंड प्रमोटिंग आवरसेल्फ. एक चीज़ मैडम, आज बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो डेंटिस्ट बन रहे हैं. और बहुत सारे लोग आज, सबको ऐसा होता है बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं तो खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करें. दैट्स अ गुड थिंग एंड दे वांट टू बी द मेडिकल एंटरप्रेन्योर. तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? See, the first advice I would give is कि have some patience. Even if you are putting the efforts,
यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिजल्ट्स क्विकली नहीं मिलने वाले हैं. यू नो 1-2 साल तुमने प्रैक्टिस किया और तुरंत तुम करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं. ओवरनाइट यू आर नॉट गोइंग टू अचीव योर टारगेट्स, बट द थिंग इज यू हैव टू हैव अ प्लान. पहले एक छोटा सा गोल बनाओ कि आई नीड 1 पेशेंट पर डे. एक पेशेंट चाहिए, सो यू आर हैविंग 300 पेशेंट्स इन अ ईयर कंसीडरिंग द हॉलीडेज कम किया. मेक अ टारगेट 300 कस्टमर्स चाहिए. मेक अ बेसिक के 15 लाख का ऐसे प्रैक्टिस चाहिए. पहले वो अचीव करो. शायद फर्स्ट ईयर में नहीं हो तो सेकंड ईयर में अचीव करो. डोंट गिव अप. यस एग्जैक्टली. और सेकंड ईयर में भी अचीव नहीं हुआ, थर्ड ईयर में तो हो ही जाएगा बॉस. जस्ट डू. आप लगे रहते हो ना तो यस एग्जैक्टली. कुदरत आपके पास वो रास्ता लाई देता है. आ ही जाता है वो. So yeah, that is you take small steps towards your goal. Don't give up. Put in the consistency is the key. कि 1-2 साल में don't give up. मैं फॉरेन जा रहा हूँ, फॉरेन में वहाँ पे भी तुमको मेहनत करना पड़ेगा. See, there also no one is there to welcome you के आ जाओ तुम. हाँ. And when you are able, suppose आपने 15-20 lakhs का टारगेट रखा, then you will know when you are able to achieve that target. कि अगर 12 तक पहुंच गए तो नेक्स्ट ईयर 15 तक तो पहुंच ही जाएंगे. ओके, सो बाय दैट वो 15 का टारगेट मत रखो, 30 lakhs का टारगेट बनाओ. ओके, सो दैट इज हाउ यू डू इट. एंड देन स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स ऑल्सो इन दैट डायरेक्शन, बिकॉज वो 30 लाख का प्रैक्टिस को डिफरेंट एफर्ट्स, वो तुम्हारा लेवल जो होगा दैट इज गोइंग टू वो हायर. वो गेम खेलते हैं ना हम लोग कि एक लेवल हायर जाता है तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है. तो तुम एक स्टेप ऊपर जाओगे तो डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ने वाला है. एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल. ट्रू. सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई. सी, अगर आप मेडिकल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, खुद का प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपका जो मेडिकल स्किल्स, जो आपका इन हाउस फैसिलिटी, द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो सब तो होना ही होना है. साथ साथ में मैडम ने जो बताया वो मतलब बिजनेस प्रिंसिपल्स बता दिए कि आपको एक सेट ऑफ गोल रखना है, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है, गिव अप नहीं करना है. हो सकता है कि पहले साल में डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले, कोई बात नहीं, दूसरे साल में ना मिले, कोई बात नहीं, तीसरे साल लगे रहो. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपका टारगेट अचीव हो जाता है, डोंट सेटिस्फाई योरसेल्फ, कीप अ बिगर गोल. और वो बिगर गोल है तो उसको अचीव करने के लिए आपको उस लेवल के लिए तैयारी करना पड़ेगा. यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ, बिकॉज आप अगर 10 लाख का टर्नओवर कर रहे हो तो उसके लिए जो स्किल सेट, माइंडसेट चाहिए था वो यहां तक का था. अगर आप उससे डबल जाते हो तो उसका स्किल सेट, माइंडसेट एंड द प्लानिंग एंड द एक्शंस आर डिफरेंट. तो उसके लिए भी प्रिपेयर करो, तो दैट विल हेल्प. वेरी नाइस. आपका जर्नी से बहुत सारे बिजनेसमैन, इवन स्पेशली आई वुड से बहुत सारी लेडीज जो अपनी ताकत को छुपा के रखी है, उनको भी बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा. तो आप अपनी जो ये पूरी जर्नी की, मतलब आई वुड से 2018 के बाद तो आपने एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है अपनी लाइफ में. तो ये 2018 के बाद की जो आपकी सक्सेस है, उसके पीछे आपकी ऐसी कौन सी स्किल को, मतलब आप बताओगे कि ये स्किल और ये उसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची? आई थिंक माई माइंड सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑलवेज हैड कि माइंड सेट तुम्हारा स्ट्रांग होगा ना, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ कि यू कैन डू इट, देन यू विल बी एबल टू डू इट, ट्रस्ट मी. लेकिन इफ़ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, आप इफ़ यू आर हैविंग डाउट्स विद कि मैं कैसे करूँगी, कैसे होगा ये, देन ट्रस्ट मी, इट इज़ अ श्योर शॉर्ट रेसिपी के आप सोचते हो नहीं हो सकता तो नहीं होगा. सो फर्स्ट थिंग इज यू बिलीव इन योर सेल्फ. तो आने वाले 5 साल में आपका गोल क्या है? ओके, यही है आने वाले 5 साल में. आई वॉन्ट सी डॉक्टर पुराणिस डेंटल सॉल्यूशंस, एज आई टोल्ड, इज अ लीडिंग डेंटल प्रैक्टिशनर इन वडोदरा. आई थिंक in next 5 years I can make it a leading dental practice, top dental practice in Vadodara. Top dental that practice. is what my goal is. Yes. So in terms of number or in terms of finance, I would say finance I think 5 crore practice. Yes, it can be that achievable. That's what that is achievable. Big hospital setup with 2 floors and that is so what you would my like goal to is. open up the dental hospital, yes, where there are which is having the latest CBCT. CBCT is like 3D X-ray, and we are doing in-house implants, like surgical operation theater. Yeah, that is what Great. my Certainly you will make it possible, because
जब आपको डाउट था कि मैं अपने हस्बैंड के लेवल का कर सकूंगी कि नहीं, तब आपने उनसे डबल करके दिखाया। तो अभी तो आपको क्लैरिटी है कि मेरे को हॉस्पिटल बनाना है और 5 करोड़ तक का मंथली ईयरली प्रैक्टिस तो पहुंचाना है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल। क्योंकि जब आप सोच लेते हो, उसको कंसीव कर लेते हो और उसके हिसाब से मेहनत करते हो ना, तो ऊपर वाला भी साथ होता है। जो लोग नसीब बोलते हैं ना, वो नसीब ऐसे नहीं मिलता है। वो कंटिन्यूअस हार्डवर्क, मेहनत, डेडिकेशन और एक फोकस के साथ लगे रहने के बाद ऊपर वाला भी चेक करता है कि इसको दूं कि नहीं, तो तब मिलता है। सो मैडम, योर स्टोरी विल इंस्पायर मेनी पीपल टू बी इंडिपेंडेंट, टू लीड देयरसेल्व्स एंड टू बी द सक्सेसफुल पर्सन इन देयर लाइफ। यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। ऐसी चैलेंजेस हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगे कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमको ऐसी चैलेंजेस नहीं मिली। तो ऐसी चैलेंजेस से पास होके इन्होंने एक अपना नाम क्रिएट किया है। तो बहुत सारी चीज सीखने को मिली है। थ्रू आउट द इंटरव्यू बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला, ये कमेंट में लिख के बताइए, जिससे लोगों को भी पता चले कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि ये स्टोरी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकती है, तो लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, जिससे पता चले कि कमजोर होना अच्छी बात नहीं है। अपने आप के ऊपर भरोसा करके काम करने से कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सो मच।